راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی میں میں ہوں عادل مشتاق اور میری طرف سے آپ سبھی کو بہت بہت سلام قبول ہو۔ کہیے جناب کیا حال چال ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور دعا بھی یہی ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیریت اور سلامتی سے رکھے، آمین۔ سامعین، آج بڑا دلچسپ موضوع ہے جس پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ آج کل اگر ہم غور کریں تو بچے لیٹ نائٹ تک کھیلتے ہیں، موبائلز پر گیمز کھیلتے ہیں، اور اگر ان کو منع کیا جائے یا ان کو ٹوکا جائے تو ان کے پاس ایک معقول بہانہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اپنی اسکول، یونیورسٹی، کالج کا کام موبائل پر کر رہے ہیں، جبکہ وہ گیمز یا کسی اور ایکٹیویٹیز میں بھی اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوتے ہیں۔ بڑوں کی بات کی جائے تو بڑے بھی ہم کچھ اسی طرح سے دیر تک باہر رہتے ہیں یا کچھ اپنے کاموں میں اس طرح سے مصروف رہتے ہیں، تو اس کے اگر اثرات کی بات کی جائے تو واقعی اس کے اثرات جو ہیں وہ بڑے منفی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ جو بچے دیر تک جاگتے ہیں، صبح جب ان کو جلدی اٹھنا پڑتا ہے تو ان کی بتدریج صحت خراب ہوتی ہے۔ اگر نہیں بھی اٹھنا پڑتا تو اگر وہ دیر تک سوتے ہیں تو کیا فائدہ ان کے رات کام کاج کرنے کا، کیونکہ جو صبح کو خاندان کو ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ بہت سے کام بنا کیے رہ جاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ بچہ ابھی سویا ہے۔ تو قانون ہے جو خدا تعالیٰ نے سیٹ کیا ہے، یعنی ہر ایک چیز مقررہ وقت پر جب کی جاتی ہے تو اس کے اثرات بہت مثبت ہوتے ہیں، لیکن اگر وہی چیز مقررہ وقت سے ہٹ کر کی جائے تو پھر وہ پریشانی یا اس کے منفی اثرات ہم پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو بات یہی ہے، کام کے وقت کام اور آرام کے وقت آرام کیا جائے۔ تو اسی پر ہم آج مزید بھی بات کرتے رہیں گے، لیکن پروگرام کا آغاز ہم کریں گے باقاعدہ طور پر خداوند کے کلام کی تلاوت سے۔ آئیے مل کر سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ اے خداوند، میری دعا سن، میری التجا پہ کان لگا، اپنی وفاداری و صداقت میں مجھے جواب دے، اور اپنے بندے کو عدالت میں نہ لا، کیونکہ تیری نظر میں کوئی آدمی راست باز نہیں ٹھہر سکتا، اس لیے کہ دشمن نے میری جان کو ستایا ہے، اس نے میری زندگی کو خاک میں ملا دیا، اور مجھے اندھیری جگہوں میں ان کی مانند بسایا ہے جن کو مرے مدت ہو گئی ہو۔ اسی سبب سے مجھ میں میری جان نڈھال ہے اور میرا دل مجھ میں بےکل ہے۔ میں گزشتہ زمانوں کو یاد کرتا ہوں، میں تیرے سب کاموں پہ غور کرتا ہوں اور تیری دستکاری پہ دھیان کرتا ہوں۔ میں اپنا ہاتھ تیری طرف پھیلاتا ہوں۔ جی تو سنا ہم نے تلاوت کلام مقدس کا بڑا خوبصورت اقتباس، بڑا ایمان افروز اقتباس اور خدا پر انحصار کرنے والا کہ ہم جب بھی دعا کریں ہم خداوند تعالیٰ کی طرف ہاتھ بڑھائیں، اس کی طرف ہاتھ پھیلائیں، کیونکہ ہر چیز کا منبع اور ہر چیز کو بخشنے والا، دینے والا، رحم کرنے والا صرف اور صرف خدا تعالیٰ ہے۔ آئیے مل کر ہم خداوند تعالیٰ کی حمد میں شامل ہوتے ہیں۔ خوبصورت حمدیہ کلام، اور جناب ابھی وقت ہے آپ کے خطوط اور ایس ایم ایس کو شامل کرنے کا۔ تو بہت سارے خطوط میرے پاس موجود ہیں جو بڑی محبت کے ساتھ لکھے گئے۔ جناب ایس عبدالغفور کیسر صاحب اور رانا شمشاد علی صاحب کا خط میرے پاس موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ سلام خلوص، پیاری بہن مینا پرویز صاحبہ کی آواز میں پروگرام سنا۔ کہتے ہیں کہ امید کرتا ہوں کہ پروگرام راہ زندگی کی پوری ٹیم خیریت سے ہوگی، اور کہتے ہیں کہ پروگرام بہت اچھا پیش کیا گیا، اور کہتے ہیں کہ غلام سرور بلوچ اور سنگت ریڈیو لسنرز کلب کے خط بھی بہت پسند آئے۔ ساتھ ہی ساتھ جناب غور سے سنیے گا، سردار سہیل اور فہیم نور اور اکرم سیال صاحب کو انہوں نے سلام کہا ہے، تو سلام قبول کیجیے جناب ایس عبدالغفور اور رانا شمشاد علی کا۔ بہت شکریہ عبدالغفور اور رانا شمشاد، آپ کی اس محبت کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ہاتھ سے لکھا ہوا بہت ہی پیاری لکھائی، اور جناب یہ خط لکھا ہے ہمیں ہمارے پیارے بھائی ملک اللہ بچایا کھوکھر صاحب نے۔ آپ کہتے ہیں کہ مینا پرویز صاحبہ کی پیاری آواز میں پروگرام سنا، دل کو بہت پیارا لگا۔ کہتے ہیں کہ تلاوت کلام مقدس، حمدیہ گیت
प्रोग्राम में 4 चांद लगा देते हैं और कहते हैं कि सिलसिला सेहत की बातें दिल के अमराज पर, खुसूसन हार्ट अटैक पर मबनी मालूमात सुनकर काफी इजाफा हुआ। और बाकी सिलसिलों को भी इन्होंने बहुत पसंद किया है। और जनाब, जो आपने कहा है कि हमें खुशी होती है जब आप हमारा खत पढ़ते हैं, तो आपका जब खत आता है तो हमें भी बहुत बहुत ज्यादा खुशी होती है। मलक अल्लाह बचाया खोकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खत लिखने का। जनाब गुलाम सरवर बलोच, जो कि बड़े अच्छे भाई हैं जी, बड़ी दूर से हमें खत ये लिखते हैं। और गुलाम सरवर बलोच, आपने राह जिंदगी उस पर बड़ी खूबसूरत ड्राइंग करके और फिर उसमें रीबा, आदिल, मीना परवेज, अनवर भाई, जोशुआ साहब का नाम बड़ी खूबसूरती के साथ आपने ड्राइंग किया है। थैंक यू सो मच सर आपका। और आपने प्रोग्राम के बारे में लिखा कि प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और कहते हैं कि हमदिया कलाम, गीत और जितने भी सिलसिले हैं वो सभी बहुत अच्छे हैं। इससे हम बहुत बहुत लुत्फ अंदोज भी होते हैं और हमें बहुत फायदा भी मिलता है। तो बहुत शुक्रिया गुलाम सरवर बलोच आपकी इस पसंदीदगी के लिए, जो आप मोहब्बत के साथ सुनते भी हैं और फिर उस पर फीडबैक भी देते हैं। थैंक यू सो मच। एहसन अली साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। फाक साबिर साहब हैं जी। हम आप दोनों भाइयों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने भी राह जिंदगी को सुना और आप राह जिंदगी में शामिल हुए। थैंक यू सो मच जी। हम पूरी टीम की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हुए आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। जाहिद हुसैन, आपका ताल्लुक सियालकोट से है। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी खत लिखा और आपने प्रोग्राम को पसंद किया और इसके सिलसिलों को पसंद किया। थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ हैं जी सुलेमान अंसारी साहब का भी पैगाम मौजूद है। आपने भी प्रोग्राम को पसंद किया और आपने इनामी सिलसिलों को भी पसंद किया और गुफ्तगू को भी आपने पसंद किया। थैंक यू सो मच प्यारे भाई सुलेमान। आपका खत बहुत खुशी देता है हमें, क्योंकि आप हमेशा ही बड़ी अच्छी और बड़ी गहरी बातें हमें खत में लिखते हैं। थैंक यू सो मच आपका कि आप एक लंबे अरसे से राह जिंदगी की टीम के साथ, इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो खतूत और एसएमएस के सिलसिले को यहीं पर समेटते हैं और आपको बताते चलें कि जनाब आप भी हमें खत लिख सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम राह जिंदगी, पीओ बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसल आबाद पाकिस्तान। और फोन कॉल और एसएमएस के लिए नंबर है 0333 4825 और फेसबुक आईडी के लिए आपको लिखना है जिंदगी अनवर। कोई भी जरिया आप इस्तेमाल कीजिए, जरूर हमसे राब्ता कीजिए, हमें खुशी होगी और हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो जनाब अभी वक्त है आगे बढ़ने का। हम सुन रहे हैं हजरत दाऊद की जिंदगी पर मबनी ड्रामा चिरागेरा और आज है उसकी 17वीं किस्त। आइए मिलकर सुनते हैं। वो आ रहा है दाऊद बादशाह का बेटा शहजादा अबी सलूम। उसका रथ कितना शानदार है, बड़ा खूबसूरत जवान है। बाल कितने लंबे हैं, देखो जरा। अबी सलूम कुछ कहने लगा है। ओ यरूशलेम के शहरियों, क्या तुम्हारे दरमियान कोई ऐसा झगड़ा है जिसका फैसला तुम्हें चाहिए? क्या तुम्हें इंसाफ और अदल चाहिए? गौर से सुनो। देखो, इस वक्त दाऊद बादशाह की तरफ से शहर में कोई काजी मुकर्रर नहीं जो तुम्हारे फैसले करे। अगर मैं इस शहर का काजी होता तो तुम्हारे झगड़ों के फैसले और तुम्हारा इंसाफ करता, लेकिन फिर भी तुम में से हर एक मेरे पास आ सकता है, मैं जरूर उसका इंसाफ करूंगा। अगर किसी का कोई मसला हो तो शहर के दरवाजे पर मेरे पास आ जाए, मैं उसका मसला हल करूंगा। हर सुबह वो शहर के दरवाजे पर आता है और लोगों की शिकायतें सुनता है। हाँ भाई, दाऊद बादशाह के पास तो इन शिकायतों को सुनने का कोई वक्त ही नहीं और लोगों की शिकायतें बहुत ज्यादा है। समय भाई, क्या मतलब है तुम्हारा? साउल के जमाने में और बात थी। ये किस तरह? तुम जानते नहीं, समय साउल के खानदान में से है। हाँ मैं हूं भाई, मेरे बाप का नाम जेरा था। हमारे बाप की बड़ी जमीनें थी।
लेकिन दाऊद ने बादशाह बनने के बाद हमारा सब कुछ यूनतन के अपाहज और माजूर बेटे की नजर कर दिया। भाई समाई, तुम ये बात शहजादा अबीसलूम को बताओ, वो जरूर तुम्हारी सुनेगा। क्या दाऊद का बेटा मेरी सुनेगा? वो तो सबकी मदद करता है, गरीब आदमी का तो दोस्त है। दाऊद बादशाह तो उसकी कदर नहीं करता, लेकिन तमाम लोग उसकी इज्जत करते हैं। आका दाऊद, एक खबर है आपके लिए। आप जानते हैं शहजादा अबीसलूम हबरून को चला गया है। हाँ युवाब, वो कहता था कि वहां उसने खुदावंद के आगे एक मन्नत मानी है, उसे पूरा करना है। मैंने उसे इजाजत दे दी। तो सुने बादशाह सलामत, उसके साथ 200 जंगजू सिपाही भी हैं। अब हमने सुना है कि उन लोगों ने हबरून में अबीसलूम को अपना बादशाह भी बना लिया है। बादशाह? ओह, तो युवाब, मेरा बेटा मेरे खिलाफ हो गया है। अब मुझे समझ आई है कि वो काफी देर से मेरे खिलाफ मंसूबे बना रहा था। हाँ मेरे आका, लोग भी उसी के पीछे लगे हुए हैं। यहां यरूशलेम में भी इस वक्त उसकी बड़ी ताकत है। ओह, अबीसलूम, वो किसी वक्त भी हम पर हमला कर सकता है। सुनो युवाब, हमें महल छोड़कर कहीं और पनाह लेना पड़ेगी अब। लेकिन दाऊद बादशाह, आपकी फौज तो आपके साथ है। अगर अबीसलूम हमला करे तो हम आसानी से शहर का दिफा कर सकते हैं। नहीं युवाब, मैं फजूल खून खराबा नहीं देखना चाहता। अगर अबीसलूम यहां हम पर हमला करे तो यरूशलेम तबाह हो जाएगा। कहां जाएंगे हम आका? हम जैतून के पहाड़ के रास्ते वादी यरदन के बयाबान में चले जाएंगे। मैं अभी शाही दस्तों को तैयार करता हूं जनाब। बेगम, बेगम, खबर सुनी तुमने? दाऊद के बेटे ने बगावत कर दी है। मैंने तो नहीं सुना सरताज समई। उसने बादशाह के तख्त पर कब्जा कर लिया है। जिंदाबाद अबीसलूम, जिंदाबाद। ओह, इसका मतलब हुआ शहर में बहुत खून खराबा होगा। कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। सरताज समई, तुम ये क्या कह रहे हो? दाऊद वो तो अच्छा बादशाह था। अच्छा बादशाह? दाऊद की वजह से हमारे बाप दादा की बहुत सी जमीन हमारी विरासत जाती रही। मैं भी साउल बादशाह के खानदान का हूं। अगर दाऊद हमारा बादशाह ना होता तो आज हम महल में रह रहे होते। लेकिन हमारा घर महल ही तो है, हमारे पास जमीन है, सब कुछ है, हम गरीब तो नहीं। मैं बाहर जा रहा हूं बेगम, मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। मैं जालिम दाऊद को जिल्लत की हालत में यरूशलेम से बाहर निकलते देखना चाहता हूं। मत जाओ समई, बहुत बुरी बात है ये। मैं उसे बताऊंगा कि वो है क्या। ना जाओ समई, ना जाओ। दाऊद खुदा का खादिम है, खुदा ने उसे बादशाह बनाया है। मुझे मत रोको बेगम, जाने दो मुझे। अबीशे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह यरूशलेम छोड़ना पड़ेगा। कोहे जैतून से गुजरते हुए मैं तो रो पड़ा था। देखें आका दाऊद, कितने लोग हमारे साथ हैं, सब आपके वफादार हैं। और बहुत से मुझे यरूशलेम से जाते देखने आए हैं। अबीशे, वो देखो, वो आदमी, वो जो हमारी तरफ आ रहा है। हां, मैं जानता हूं वो कौन है। वो समई है, साउल के घराने का एक आदमी। अगर कोई मेरी इस हालत पर खुश हो सकता है तो ये वो आदमी है। लानत हो तुम पर दाऊद, खूनी आदमी, तुम पर लानत हो दाऊद। मैं अभी इस आदमी का मुंह बंद करता हूं। कहने दो जो कहता है अबीशे। कातिल, चोर, निकल जा यहां से। आका, वो पत्थर फेंक रहा है हम पर, उसकी ये जुर्रत। मारने दो पत्थर उसे, मत मना करो। तूने साउल के खानदान के कई लोग कत्ल किए हैं,
खुदा तुझे सजा दे रहा है दाऊद। ये झूठ है मर्दूद। दाऊद ने साउल के खानदान के किसी शख्स को कत्ल नहीं किया। अब खुदा ने बादशाह तुम्हारे बेटे को दे दी है। इजाजत दे मेरे आका, मैं इसका गला काट दूंगा। ओ खूनी दाऊद, खुदा ने तुझे तबाह कर दिया है। तू अपने किए का फल खा रहा है। हुजूर, ये मरा हुआ कुत्ता क्यों आप पर लानत बरसा रहा है? मुझे चुप कराने दें इसे। अभिषे, तुम्हें इससे क्या? अगर खुदावंद ने उससे कहा है कि दाऊद पर लानत कर, तो कौन उसे रोक सकता है? मेरा अपना बेटा ही मेरी जान का प्यासा है, तो ये शख्स जो मेरे कबीले का भी नहीं, क्यों न ऐसा करे? उसे छोड़ दो। शायद खुदावंद उस जुल्म पर जो आज के दिन मेरे ऊपर हुआ है और इसकी लानत के बदले मुझे बरकत दे। करने दो उसे लानत। तो सुनिए, हमने आज 17वीं किस्त और आज की कहानी में खूबसूरत बात हम सब के लिए कि अगर हम पर कोई लानत भी करता है तो भी हमें उसके लिए बरकत चाहनी है और इससे हमारी जात खुदावंद ताला के हुजूर ज्यादा मकबूल होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और सिलसिला आईना सुनते हैं, जिसमें आज आमने सामने हैं इल्म और बेइल्मी। आइए मिलकर सुनते हैं कि इनके माबैन क्या गुफ्तगू जारी है। आईने में हम जाहिरी सूरत देखते हैं और बातिन में क्या है इससे ना आशना रहते हैं, लेकिन सोच का आईना हकीकत से आशना करता है। आज आईना क्या दिखा रहा है? इलम, ये क्या तुम हर वक्त किताबों और कंप्यूटर में खोए खोए से रहते हो? तो क्या मैं भी तुम्हारी तरह दुनिया भर से बेखबर रहकर बेकार फिरता रहूं? और जिसे तुम बेकारी कह रहे हो, ये बड़ी कारआमद चीज है इलम। क्या क्या क्या? अरे देखो, ये मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि मेरा वक्त बर्बाद ना किया करो बेइल्मी। जाओ और मौज उड़ाओ। अरे वक्त तो तुम किताबों को चाट चाट कर बर्बाद करते हो इलम। आओ मेरे साथ, इन किताबों से बाहर निकल कर देखो, दुनिया में कितनी दिलचस्पियां हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है बेइल्मी, मैं दुनिया की रंगीनियों से बेखबर हूँ? हाँ इलम, ख्याल ही नहीं, मुझे यकीन है कि तुमने खुद को किताबों और इंटरनेट में कैद करके दुनिया से ताल्लुक तोड़ लिया है। तलफ्फुज भी सही नहीं है तुम्हारा। अरे तुम्हें क्या खबर बेइल्मी कि दुनिया एक टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन में सिमट कर रह गई? हाय हाय इलम, तुम्हारा तो दिमाग ही उलट गया पढ़ पढ़ के। इतनी बड़ी दुनिया को इतना छोटा कहते हुए तुम्हें अपनी लाइल्मी पर अफसोस नहीं होता? अरे मुझे तो तुम्हारी ज़हनियत पर अफसोस होता है बेइल्मी। तुम अपनी आंखों से जहालत की पट्टी उतार क्यों नहीं देती? तुम भी चाहते हो कि मैं भी तुम्हारी तरह ना खत्म होने वाले समंदर में कूद जाऊं? तुम इल्म के समंदर में गोता लगाकर तो देखो। हाँ, ताकि डूब जाऊं। लो भाई, तुम्हें अक्ल और दानिश के नायाब मोती मिलेंगे। और मछली मिलती तो मैं जाती। मैं किताबों में तुम्हारी तरह वक्त बर्बाद करने की बजाय कोई हुनर क्यों ना सीख लूं? लो, हुनर भी इल्म का एक जरिया है बेइल्मी। तुम इस तरह भी मेरे करीब आ सकती हो। मैं तुम्हारे चांसे में आने वाली नहीं हूँ। तुम्हारी चाहत में कई साल स्कूलों कॉलेजों के धक्के खाने वाले आज दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। ओहो हो, तुम्हें गलत फहमी हो गई। अरे बाबा, मैंने कब दावा किया है कि मैं रोजगार की सीढ़ी हूँ? अरे मैं तो आदमी को इंसान बनाता हूँ। अरे भाड़ में जाए ऐसी इंसानियत कि आदमी इंसान बनने के लिए अपनी जिंदगी के कीमती 15-20 साल बर्बाद कर दे। तौबा तौबा तौबा, तुम्हारे साथ बहस करना वक्त बर्बाद करने के मुतरादिफ है। अरे जाओ बाबा, मेरा दिमाग मत चाटो। तुम हर वक्त इल्म का रोना रोते रहते हो इल्म। आओ मेरे साथ, मेरे हम सफर बन जाओ, फिर तुम्हारे पास वक्त ही वक्त होगा। अरे रहने दो बाबा, देखो मैं तुम्हारी तरह शुतरे बेमहार नहीं हूँ। मैंने कम वक्त में ज्यादा लोगों के पास पहुंचना। पता नहीं क्या क्या कहते रहते हो ताकि किसी को समझ ही ना आए। भाई देखो, मैं ज्यादा लोगों के पास पहुंचना चाहता हूँ कम वक्त में। हाँ, जिन्हें तुम अपने चाहने वाले समझते हो वो भी मेरी मोहब्बत के असीर हैं। अब तुम्हारे नाम पर मैंने लोगों के ज़हनों को अपना ठिकाना बना लिया। क्या खाक ठिकाना बनाया? ये भूल है तुम्हारी बेइल्मी। मेरी अहमियत का अंदाजा तुम साइंसी तरक्की से लगा सकती हो। तरक्की? आज दुनिया में जो तरक्की और शऊर की लहर चल निकली है वो सब मेरी वजह से। तुम्हें गलत फहमी हो गई अपने बारे में।
अब तुम्हारा चल चलाओ है। लो तालीमी इदारों में तुम्हें जलील करके रख दिया गया भूल है और तुम्हें। तुम्हारे चाहने वालों ने डिग्रियों की सूरत में तुम्हें बेचना शुरू कर दिया। और तुम चंद एक गलत लोगों की वजह से मुझे बदनाम नहीं कर सकती। तुम तो पहले बदनाम हो, मैं तुम्हें क्या बदनाम करूं? बाबा मैं तो चश्मे फैज हूँ जिससे पूरी इंसानियत सैराब होती है। अब तुम चश्मा बांध जाते हो कभी दरिया। अब किसी के पास इतना वक्त नहीं कि वो इतने मुश्किल रस्तों से गुजर कर इस चश्मे से प्यास बुझाए। मैंने लोगों पर अपना जादू करके उन्हें इतना मसरूफ कर दिया है कि उनके पास तुम्हारे लिए वक्त ही नहीं रहा। अब तुम मुंह छुपाते फिरोगे और मैं हर तरफ फैलती चली जाऊंगी। और हाँ, मेरा अगला निशाना तुम हो। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? तो सुनिए हमने इल्म और बेइल्मी के माबैन ये गुफ्तगू। उम्मीद करता हूं कि आज की ये बहस हम सबके लिए बहुत कुछ सीखने का मौका बनी होगी। जी, तो जाने से पहले हम यही कहेंगे कि हम जो बड़े हैं हमें अपने बच्चों को अच्छा नमूना देना है। अगर हम खुद ही रात गए तक लेट बाहर रहते हैं या इस तरह की और एक्टिविटीज में मोबाइल पर इंटरनेट पर मसरूफ रहते हैं तो बच्चों को हम कैसे रोक सकते हैं? तो बच्चों के लिए भी जरूरी है कि वो रात गए तक मोबाइल यूज ना करें या जागे ना, बल्कि मुकर्रर वक्त पर सोएं और अपने दिन में कामकाज करें। तो इसी के साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे, लेकिन जाने से पहले हम दुआ करेंगे। आइए झुकते हैं खुदावंद ताला के हुजूर और दुआएं और मुनाजात उसके हुजूर पेश करते हैं। खुदावंद ताला, हम आपके हुजूर मौजूद हैं और हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि हम जब भी आपके सामने कुछ भी रखते हैं, कुछ मांगते हैं, आप हमारी दुआ का जवाब देते हैं। हम दुआ करते हैं खास तौर पर आज लिसनर्स के लिए, उनके खानदानों के लिए कि खुदावंद ताला उनके खानदानों को बरकत अता फरमाइए। अगर कोई बीमार है या किसी कमजोरी में है या किसी परेशानी में है तो उसकी बीमारी, कमजोरी और परेशानी को दूर फरमा दीजिए। हमारे मुल्क को तरक्की अता कीजिए और हमें तौफीक अता कीजिए कि हम अपने काम मुकर्रर वक्त पर कर सकें। और ये दुआ मांग लेते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इसी के साथ अपने मेजबान आदिल को प्रोग्राम राह जिंदगी से इजाजत दीजिए।